वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। सब बोलिए मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम् ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सब इकट्ठे भक्तों की जय। Hare Krishna. Please accept my dandavats to each one of you. Each one of us have Krishna in a 4-inch form inside. So everybody is a moving temple. So continuing with Srimad Bhagavatam. So we are in the 3rd canto and Devhuti Mata is asking questions to Kapil Bhagwan. So what was the first question and the primary question she has asked? Anybody would like to? How to come out from this material energy? Fantastic. See, what we will do is, going forward, all of us together should summarize. Yeah. So, I will also retain something. So, yes, however is the material energy going to leave the soul? Because the attraction is from Anadikal, from time immemorial. So, what should be done? So what is the answer in the first part it was given? Anybody who remembers? How this is possible? There are 2 parts of the answers. First part is once the prescribed duties are done, then the result material does not come. The result is no more material. So automatically the entanglement is released by logic. Second is by getting a higher taste, converting all activities into into spiritual activities. When the higher taste comes, then attraction is not there, then it is released. But Devhuti Mata, after saying this, realized that directly telling common people is not going to be easy, because first there should be some experience. Unless there is experience, you don't get your first job.
Here also, unless there is an experience of something, nobody will be inclined to think that I will do it as a duty for Krishna consciousness. It's good to say like that, but difficult. Second is, why should I do devotional service? So there must be some experience. So now she asks, another question, so that everybody can relate to an experience and then understand her first question. So what is the question she asks is in 329.3. Please repeat. Virago yena purusho Bhagavan sarvato bhavet achakshva jiva lokasya vividhamam samsritihi. She is saying virago yena purusho. Purusho is anybody, any living entity. Virago. Virag is what? Vairagya. Detachment from English or Hindi? हाँ जी हिंदी हिंदी तो विराग क्या है जी? यू आर ओके विद हिंदी? ओके. व्हाट इज विराग? डिटैचमेंट फ्रॉम समथिंग. विराग हो गया जी, अब अच्छा ही नहीं लग रहा. तो वो पूछ रही हैं देवहूति माता, विरागो ये न पुरुषो, जो पुरुष है यानी कि स्त्री या पुरुष जो है, उसको कभी वैराग्य होता है क्या? फ्रॉम किस चीज से? हाँ, ये जो जड़ चीजें हैं इनसे कभी विराग होता है क्या? अगेन एक बार फिर से वो वही सवाल पे आ गए कि भाई कभी होता है क्या? क्योंकि अगर होता है तो वो कहने लगी कि आचक्ष्वा, प्लीज बताइए, जीव लोकस्य, संसार के सब लोगों के लिए, विविध माम, और मेरे लिए भी, संस्मृति, ये जो मुसीबत पैदा होने और मरने की है, आप कृपया करके ये बताइए कि इसके बारे में बताइए जिससे इससे बचा जा सके. तो ट्रांसलेशन है, प्लीज रिपीट. देवहूति कंटिन्यूड, माय डियर लॉर्ड, प्लीज ऑल्सो डिस्क्राइब इन डिटेल for both me and for people in general the continual process of birth and death, for by hearing of such calamities we may become detached from the activities of this material world. तो पहले तो सवाल पूछ लिया कि कैसे डिटैच हो, तो उन्होंने बता दिया भाई डिवोशनल सर्विस, और ये बोले लेकिन बिना एक्सपीरियंस के नहीं होगा. तो अब वो ये पूछ रही हैं कि आप हम सब के लिए जो तकलीफें और मुसीबतें पैदा होने और मरने में हैं, और उसकी जो संस्मृति है, जो उसका चक्कर चल रहा है, आप कृपा करके अगर उन मुसीबतों के बारे में बता दें तो हो सकता है कि हम इस जड़ अवस्था जो है, जो जड़ भगवान की एनर्जी है, जो मटेरियल एनर्जी है, हो सकता है कि हम उससे अलग होने का सोचें. क्योंकि ये एक्सपीरियंस हर एक के पास है, पैदा होने का और मरने का. एवरीबडी हैज द एक्सपीरियंस ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ. तो शी इज टेलिंग, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दैट, बिकॉज देन पीपल विल रिलेट विद देयर एक्सपीरियंस. बाय नोइंग दिस, one may, by knowing the calamities of birth and death, one may be interested in getting detached from the material world. That is why the subject is the problem of not knowing despite knowing. Everybody knows birth and death, but the problem of not knowing despite knowing meaning I am not able to realize despite I am reading, I am going through. So she is saying, उन्होंने बोला कि भाई आप कृपया करके एक बार बताइए, जन्म मृत्यु के बारे में बताइए. जब उनकी मुसीबतें और तकलीफ के बारे में सुनेंगे तो हो सकता है कि मैं और आम जनता जो है वो इस जो आपकी जो जड़ प्रकृति है, जो मटेरियल नेचर है, उससे शायद अलग हो सके. तो दो पार्ट में क्वेश्चन हो गया. पहले वाले में तो ऑलरेडी हायर लेवल पे पूछ लिया कि क्या करना चाहिए, उन्होंने आंसर तो दे दिया, भाई ड्यूटी कर लो, भगवान का नाम गुणगान स्मरण करो, इन सब से छूट जाओगे.
लेकिन कोई उत्साहित तो हो करने के लिए, देयर शुड बी सम मोटिवेशन। नो, करूं क्यों, आई एम एंजॉयिंग, तो मेरे को क्या पड़ी है करने की। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई हम सब के लिए आप प्लीज एक्सप्लेन द कैलामिटीज ऑफ बर्थ एंड डेथ सो दैट वी मे बी डिटैच्ड फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्या फर्स्ट क्लास क्वेश्चन पूछ लिया हमारे लिए, बराबर है। अब जी आगे चलते हैं। अब कपिल भगवान इसका आंसर देना शुरू कर रहे हैं। ये मुझे भी मालूम है, लेकिन ठीक से नहीं मालूम है, मतलब रियलाइजेशन नहीं है। तो वो अब इसका क्योंकि उदाहरण दे के एक एक चीज को डिटेल में बताएंगे, तब समझ में आने लगेगा कि अच्छा, अभी मेरे लिए सिर्फ एक शब्द है, पैदा हुआ मर गया, लेकिन इसमें पूरा डिटेल है कि कैसे पैदा हुआ, फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, जो मैं भूल चुका हूं। मैं भूल चुका हूं कि मैं ऐसे था जी। Many years back I was sitting inside my mother's womb like this. मुझे याद नहीं है, किसी को मुझे बताना पड़ेगा था भाई ऐसे थे तुम। भाई अगर कोई किसी को बोलता है कि चलो भाई आपको एक रोल्स रॉयस देंगे, आप इतने बड़े कमरे में जो माँ की कोख के बराबर है, उसमें आप 9 महीने आपको बंद रखेंगे, आपको खाना पीना सब दिया जाएगा, एवरीथिंग विल बी सप्लाइड, कौन राजी होगा? होगा कोई नहीं। लगा बाहर में जाए तुम्हारी रोल्स रॉयस में ऐसे ही ठीक हूं। इसलिए उन्होंने पूछा कि भैया बता दो जरा आप, तो हमको भी समझ में आया कि हो क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि हो तो रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। क्यों भैया, सही है ना? अरे इनको ज्यादा पता है, कह रहे सब क्या बोल रहे, तो मैं कल पहले ही डिसाइड सब पहले सोच लिया था। ऐसा है, जितना बड़ा हो जाता है उतनी कंडीशनिंग बढ़ जाती है ना। उतना ही ज्यादा जड़ प्रकृति के साथ संबंध है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब भगवान एक एक करके सिंपल चीजें बताएंगे, बट बहुत काम किए भाई। पहला कपिलवाच 332, हाँ, यम यम अर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हेतवाय तम तम धुनोति भगवान पुमान शोचति यत्कृते। कपिल भगवान पहले सबसे पहले अटैक कर दिया, बोले अच्छा अब सुनना ही है तो अब दिल थाम के सुन लो। क्या है? यम यम अर्थम उपादत्ते। यम यम का मतलब क्या है? जो जो। अर्थम अर्थ मनी, ये वो जो जो भी, उपादन उत्पादन, हाँ, यम यम अर्थम उपादत्ते, जो जो आदमी जमा करने में लगा रहता है, धन संपत्ति ये सब, तम तम धुनोती, उसको धो देते हैं भगवान। विधुनोति सुहृतम, करेक्ट, तम तम धुनोती, उसको वहीं खत्म कर देते हैं भगवान। तम तम धुनोती भगवान, पुमान सोचती यत करते, आदमी जो है बेचारा सोचता ही रह जाता है, या तो संपत्ति चली जाती है या आदमी का शरीर चला जाता है। इन आइदर केस द आंसर इज द सेम। तो पहला नॉलेज क्या दे दिया उन्होंने कि जो जो भी जड़ प्रकृति इकट्ठी की जा रही है या बन रही है वो समाप्त हो जाएगी भैया। पहली नॉलेज सब, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्कर में सबसे पहले यही है, अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष है। अब पहले आजकल हो रहा है अर्थ धर्म काम मोक्ष, ऑर्डर ही रिवर्स हो गया है अभी तो। या खाली अर्थ भी अटक गए तो वो कह रहे भैया कर लो इकट्ठा, पर बाद में मत कहना कि बताया नहीं था, बता दिया था, खत्म हो जाएगा। पहली चीज तो क्या है? जो भी एवरीथिंग मटेरियल क्रिएटेड विल बी डिस्ट्रॉयड। एक बार क्या हुआ, एक नदी थी, तो उस नदी के ऊपर एक ब्रिज था और नीचे नदी बह रही थी। तो एक आदमी खड़ा था, बगल में एक साधु खड़ा था। तो उसने बोला साधु महात्मा से, महाराज देखिए कितने अच्छे से नदी बह रही है। साधु ने कहा बेटा वो जो तुमको दिखाई दे रहा है ना ब्रिज, पुल, वो भी बह रहा है, पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, एक दिन वो भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ है, दिखाई दे रहा है पर नहीं दिखाई दे रहा।
क्या करें, आंसर पहले ही दे चुके हैं क्या करना है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। अरे यार सोचते अरे अब क्या करें यार, व्हाट शुड वी डू, पैसा कमाना छोड़ दें क्या, क्या करना चाहिए। हाँ, मृदंगा मैन इज हियर, हरी बोल। तो सबसे पहला नॉलेज ये हो गया। क्या नॉलेज है जी? क्वेश्चन क्या था उनका कि क्या बताइए, व्हाट इज द क्वेश्चन which Devuti is asking? How to detach? How to detach? By knowing what? The calamities of birth and death. How one can get detached? By knowing the calamities of birth and death. Please explain that. And what is the first answer he is giving? Without knowing The more you will collect. Whatever you may collect, it will eventually go away. You know, This is knowledge number one. Everybody knows it, but reminder hai. Okay. So we are continuing on the subject that by knowing the birth and death process and its calamities, one may get detached from the material environment, because then the experience will come कि attachment रहेगा तो क्या problem हो रही है. So first one, सब कुछ खत्म होगा. Yes. Prabhuji, in this case, Devuti knows that these are the calamities actually. But for the general public, नहीं मालूम. Very good point. yeah. People don't. And because she knows, that's why she is raising the question. क्या बात है, जय हो. Right? But general public. Yes, then this is what you are speaking पता ही नहीं Bhagavatam. तो, because they don't know the disease, so how they will go for the Exactly. That is why this is titled as the problem of not knowing instead despite knowing. तो अभी आएगा ये जो आप बोल रहे हैं. This is part of Bhagavatam only. So let us hear. Okay. So first one is done. Whatever is materially created will be destroyed. भैया दिमाग में रखना. Okay. Second, 334. जंतुर्वै भव एतस्मिन् यम यम अनुव्रजेत यम यम योनिम अनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निर्वृति न विरज्यते. तो अभी आप जो बोल रही थी उसको संस्कृत में कपिल भगवान ने बोला है जी. देखिए, जंतुर्वै भव एतस्मिन्, जो जंतु है उसका जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस है, याम याम योनिम अनुव्रजेत, उसको कभी ये योनि मिलती है कभी ये योनि मिलती है. समटाइम्स इज born as this, sometimes born as this. तस्याम तस्याम स लभते. In that whatever the body is given, निवृत्तिम, मतलब सेटिस्फाइड रहता है वो. निवृत्तिम न व्रजेत, उसको उसमें कोई कष्ट नहीं लग रहा होता है. Yeah, यही नॉलेज है. correct. आपका पॉइंट था ना ये कि उसको पता ही नहीं है कि मैं अभी पिग है. Yeah. It is said in the hell, if the next body is going to be of a pig, they make you eat the stool in the hell itself. So that when you eat the stool as a pig, you are happy in it. This is the situation. So, problem of not knowing, problem of not knowing despite knowing. पता है कि ऐसा है पर नहीं. So, तस्या तस्या स लभते निवृत्ति न विरज्यते. Nivrattim is satisfaction. So please repeat. The living entity in whatever species of life he appears, finds a particular type of satisfaction in that species, and he is never averse to being situated in such a condition. ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया. So two knowledges have been given. Number one, whatever material is there ultimately will be destroyed. Reminder. Second, whatever living entity gets any body, that body is satisfied in that body. भाई ठीक है, मजा आ रहा है. पता ही नहीं है ना. Yeah, they are happy with that. Which you can experience because Krishna has given us higher consciousness, we can make out, right? Correct. हमारे साथ भी यही है, इससे बेटर है, लेकिन इसी में मजा आ रहा है. एक बार क्या हुआ, एक जुलूस निकल रहा था. तो उस जुलूस में एक आदमी पार्टिसिपेट कर रहा था. तो दूसरे ने उससे पूछा, भाई
तू क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, ये लोग क्या कर रहे हैं, बोले मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, बोले भाई फिर तू क्यों भाग ले रहा है, बोले बस मजा आ रहा है, उसको आनंद आ रहा है बस फॉलो करने में. सिमिलर सिचुएशन. ओके, सो एवरी स्पीशीज, पॉइंट नंबर 2, फाइंड सेटिस्फैक्शन इवन इन अ मिजरेबल कंडीशन. प्रभु कौन सा श्लोक है श्रीमद् भागवतम? 334. Actually, last time what I posted, it is part of that only. 334. 334. Okay. ओके जी. अब ये सब चक्कर हो क्यों रहा है? सो प्रभुपाद एक्सप्लेन्स देर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जीज प्राइमरीली. You know. Yes, that is there. External energy, marginal is us. There are two types of external energies. ये सब जो दिख रहा है, पहली है आवरणात्मिका शक्ति. आवरण का मतलब क्या होता है जी? हाँ, कवरिंग. उसमें क्या होता है, आवरण करने के बाद में पता ही नहीं पड़ता कि सही कर रहा है गलत कर रहा है. मतलब पिग इज एंजॉइंग द स्टूल पर उसको नहीं पता, आवरण पड़ा हुआ है बुद्धि पे. एक. दूसरी है प्रक्षेपात्मिका शक्ति. वो प्रक्षेप करती है. प्रक्षेप मतलब रुकावट. अभी जैसे सपोज सेवा का प्रोग्राम है, ठीक है 10 मिनट तो लेट हो ही गए, ट्रैफिक जरूर मिलेगा, पहुंचते पहुंचते 8:30 हो जाएगा, तब तक प्रोग्राम ऑलमोस्ट ओवर हो चुकेगा. तो फिर ऐसा करते हैं कहीं और ही चलते हैं. अरे भाई चलो, प्रोग्राम खत्म भले ही तो महाप्रसाद तो मिलेगा, भक्तों का संग तो मिलेगा, दिमाग तो ठीक रहेगा. इसको कहते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति. करना चाह रहे हैं पर नहीं. जैसे अपना एग्जांपल देता हूं, चैंटिंग का ग्राउंड किया, अब माइंड बोलेगा ऐसा है व्हाट्सएप बहुत देर से नहीं देखा. देख लेना चाहिए. मतलब ऐसा है जैसे कोई मेरे लिए वेट कर रहा है. अरे कोई वेट नहीं कर रहा भाई. और कोई वेट कर रहा होगा तो कॉल करेगा ना. या चलो आज 2 घंटे का आज हरि नाम संकीर्तन सुन के आए, चलो अब आज एक पिक्चर जरूर देखनी चाहिए. मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं. फिर क्या होगा, उस पिक्चर के अंदर 1-2 सीन ऐसे आएंगे जो आपके दिमाग में वाकई में प्रक्षेप कर देंगे. जैसे अगर एक घड़ा भरना है, उसमें अगर छेद है, आप कितना भी पानी डालो निकल जाएगा. अब वो छेद बंद करने नहीं दे रही प्रक्षेपात्मिका शक्ति. तो ये दो है चीजें. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. 335. अब देखिए जी, क्या मतलब, भगवान से ज्यादा बड़ा डायलॉग राइटर नहीं है कोई. ये मूवी वाले कुछ नहीं. आप सुनो इसको. नरकस्थो अपि देहं वही न पुमांस त्यक्तुम इच्छति. वाह. नारकयाम निवृत्तौ सत्याम देवमाया विमोहितः. नरकस्थो अपि देहम वै. भले ही से नरक में स्थिति है देह की. इवन दो वन इज सिचुएटेड इन द हेल, न पुमांस तक्त्युम इच्छति. हेल में भी छोड़ने की इच्छा नहीं है उसको. ये दिस इज भागवत. अच्छी बात यह है कि भगवान की कृपा से हम में से कोई भी यमराज को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खाली जो नाम नहीं लेते भगवान का उनको ही लेके जाते हैं, या भगवान के लिए काम नहीं करते. कुछ ना कुछ भगवान से कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो उनका पास भी एक अकाउंटेंट है हमारी तरह. क्या नाम है उसका भैया? चित्रगुप्त. उसका नाम ही चित्रगुप्त है. वो हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है. भाई ये मत सोचना कि गलत है एविडेंस. एक बार सिंगापुर में था, अब रेड सिग्नल हुआ, नया ने मेरे पास यहाँ का लाइसेंस हुआ, नया कन्वर्ट हुआ था. तो पहली बार में अगर आपके कितने 14 पॉइंट्स या कुछ लग गए तो लाइसेंस वो कैंसिल. और रेड सिग्नल जंपिंग के 12 पॉइंट्स आउट ऑफ 14. तो मैं जा रहा था, वो बाई चांस क्या हुआ, पीछे वाला बहुत पास था, आगे वाला ऐसे था, दुविधा में मैं निकल गया और वो हल्का सा रेड हो गया था. तो अगले दिन चिट्ठी आ गई कि भाई साहब 12 पॉइंट चले गए, 2 बचे, देख लेना.
चाहिए लाइसेंस तो आपकी मर्जी, वरना ठीक है दे जाना। मैं गया उसके पास मिलने, मैंने कहा सर यू नो इट वाज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आई थिंक आई मेड इट वाज ग्रीन ओनली। ही सेड सर शुड आई शो यू द रिकॉर्डिंग? वो चित्रगुप्त लेके बैठा हुआ है वो पूरा, ऐसे कोई बच नहीं सकता भैया। तो नरकस्थो अपि देहम वै, इवन दो द बॉडी इज इन द नरक न पुमांस त्यक्तुम न त्यक्तुम, इच्छति, इच्छा ही नहीं है उसको हेल को भी छोड़ने की। और नारकयाम निवृत्ता हो, नरक में भी निवृत्ता हो, मतलब नरक में भी आराम से बैठे आनंद ले रहे हैं जी। सत्यम, जबकि वहां एग्जिस्ट कर रहा है, देव माया विमोहिता, ऐसी भगवान की माया है कि वहां पे भी कुछ ना कुछ आनंद निकाल लेता है। तो इवन इन हेल वन टेक्स डिलाइट। पॉइंट नंबर 3, सो फर्स्ट वन वाज एवरीथिंग मटेरियल विल गेट डिस्ट्रॉयड। पॉइंट नंबर 2, every species finds satisfaction even in miserable condition. Third, even in hell the person takes delight. See, he is going to take the full cycle, starting from going to the hell and then again being reborn and again getting dying, birth, old age, disease, pura ek cycle. Because she asked that, you please tell me what are the calamities of birth and death. So now he is going through the whole cycle. So he started with this कि ऐसा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ देम दे ट्राई टू अर्न मनी बाय रॉन्ग मीन्स, उसकी मिजरी अलग फैलती है। अब 3:30:12 में कपिल भगवान बताते हैं, प्लीज रिपीट। कुटुंब भरण अकल्पो मंदभाग्य व्रतो उद्यमः, दिस इज 3:30:12। श्रिया विहीन कृपणो ध्यान श्वासति मूढ़धीः। नाउ ही इज टेलिंग कुटुंब, व्हाट इज कुटुंब? फैमिली। भरण, मेंटेनिंग। अकल्पो, kalpo means able to, akalpo means unable. So the person is unable to take care of the family. Now you can imagine how much Krishna is merciful to us. Frankly speaking, we are already in Golok by material standards. Yes or no? मतलब what else? If somebody asks me, भाई और क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ ना, what do you want in this material, given the rules of this material world, what do you want? आंसर है हमारे पास। You want nice kid, nice husband, nice wife. Okay, wife वाला शायद गलत हो सकता है, but nevertheless. Vehicle, staying, गर्मी में आराम से सर्दी में बैठे हैं, मतलब क्या चाहिए और बताओ, what else is needed? टाइम से ज्यादा, more than what we can eat is being provided. तो मतलब किसी को पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो एक्चुअली में आंसर नहीं है, बट nevertheless, but he is telling about कुटुंब भरण कल्पो, their people are not able to maintain the family. मंद भाग्य व्रतो उद्यमः, whatever effort the person does, because the karmas are, the actions have been such, whatever the person does, the result is still futile. Calamities of birth and death, एक बार आ तो गए यहाँ पे, अब ये भुगतो। वो तो we are so fortunate that we are not in this situation. We can see around, there are people in that situation. It's a fact. Okay, श्रिया विहीन कृपणो, what is श्रिया? श्रेया, हाँ, opulence, विहीन, opulence खत्म, कृपणो, wretched, कंजूस, हाँ, ध्यान श्वासति मूढ़धीः, वो बेवकूफ आदमी ये सब देख देख के सोच के, ध्यानम ग्रीव, दैट पर्सन, ध्यान श्वासति, क्या करें? दिस इज, सो इफ समबडी नोज, अरे भैया ये कैलामिटी है, तो कुछ तो डिटैचमेंट शायद तो होगा ना, नहीं होगा क्या? मेरे ख्याल में कुछ तो कील थोड़ा जोर से हथौड़ी लगाए तो कुछ तो छेद होगा। ओके,
हाँ, अब अगर मान लीजिए आपको श्रेया चाहिए, आपको विजय भी चाहिए, आपको श्रेय भी चाहिए, आपको ऑपुलेंस भी चाहिए, तो क्या है भैया, हमारे पास एक सॉल्यूशन है उसका, भगवान ने खुद बोला है। समरी अगले वीक उसको करेंगे बच्चों के साथ। प्लीज रिपीट, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतेर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अगर श्री ऑप्युलेंस चाहिए, दूसरा क्या है, श्री विजयो विक्ट्री चाहिए, भूतिर एक्सेप्शनल पावर चाहिए, मोरालिटी चाहिए, ध्रुवा इज सर्टेन, ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, अगर ये सब चाहिए तो क्या करो भैया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहाँ भगवान सेंटर में और फाइटर मौजूद है, मतलब अपनी ड्यूटी पूरी जोर से कर रहा है और भगवान के लिए कर रहा है, ये तीन चीज कंफर्म है। ये है, इसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता, गलत होगा तो भगवान गलत होंगे वो होगा नहीं। ओके जी, अब आगे चलिए, अब उसकी हालत देखिए, जो बंदा है ऐसी हालत में है। 3:30:13 एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलात्र आद्यस्तथा न अद्रियन्ते यथा पूर्वं किनाश एव गोचरम। तो मेरे लिए इसमें क्या लेसन है, आज की डेट में तो सब मिला हुआ है, लेकिन दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर क्या करेंगे, फिर वो ऋण का फॉर्मूला घूमते रह जाओ, हैं? तो क्लियरली मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरे पास सब कुछ मौजूद है तो ये रहने वाला है। पता पड़ा ऐसे कर्म किए, फिर अगली ऐसी बर्थ मिली कि भैया इसमें आ गए, तब एट दैट टाइम भगवान ही मालिक है, वी कृष्णा विल बी मर्सीफुल टू गिव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ इज व्हाट नाउअडेज दे आल्सो से, इंफॉर्मेशन। तो क्या है वो, एआई से फोन से लिया, कॉपी किया, फेक बनाया, हो क्या आजकल डीप फेक एआई हैज कम। तो भैया ये नहीं है कि हम आराम से बैठे हैं तो हमको इसको नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। क्या है जी, एवं स्वभरणा कल्पम, व्हेन ही इज नॉट एबल टू मेंटेन तत्कलात्र, कलात्र मीन्स वाइफ, या वाइफ के लिए हस्बैंड, तत्कलात्र आद्यस्तथा बीवी बच्चे हस्बैंड वाइफ, व्हाट दे डू, ही इज गिविंग इंफॉर्मेशन, न अद्रियंते, अद्रियंते मीन्स रेस्पेक्ट, न अद्रियंते दे डोंट रेस्पेक्ट। जिंदगी भर कमाया पर अब आप नहीं उनका भरण पोषण कर पा रहे, तो न अद्रियंते दे डोंट रेस्पेक्ट, यथा पूर्वम, पहले की तरह, पूर्वम की तरह अब नहीं रेस्पेक्ट करते। पहले आप कमा रहे थे ठीक, क्यों, जैसे विनाशः, जैसे कि जो खेती करने वाला फार्मर होता है, इव गोजरम, गो का मतलब बैल, जरम का मतलब बूढ़ा, जब बैल बूढ़ा हो जाता है तब फार्मर उसकी देखरेख नहीं करता भैया, खाने को टाइम पे नहीं देता, उसकी रेस्पेक्ट बंद हो जाती है। क्यों, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि भैया ये सब सुन करके चलो पहले दो पे चले जाओ, ड्यूटी मेरे लिए कर लो, डिवोशनल सर्विस कर लो तो बचे रहोगे, नहीं तो ये आज नहीं तो कल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इतना ही नहीं होता है, आगे और देखिए 3:30:15, टाइम ठीक चल रहा है ना प्रभु, टाइम बिल्कुल सही है प्रभु, हरि बोल। चलिए जी बोलिए, 3:30:15, आस्ते अवमत्यो उपन्यस्तम ग्रहपाल इवाहरन आम व्यय प्रदीप्तग्निर अल्पारो अल्पारो अल्पचेष्टितः। And these things we can see around us, it's happening। चलिए जी, आस्ते अमाति उपन्यस्तम, जब उसको अमात्य मतलब नेग्लिजेंटली, जब उसको उपन्यस्तम, when he is placed in such a negligent situation,
कोई पूछ नहीं रहा घर में। गृहपाल, ग्रह का मतलब, और ग्रह में कौन पालतू होता है जी? गृहपाल इवाहरण, उसकी हालत कैसी हो जाती है? घर के पालतू कुत्ते जैसी। एंड इवाहरण, जैसे खाना कुत्ते को दिया जाता है वैसे उसको दिया जाता है, नेग्लिजेंटली। जो बच गया, चलो बूढ़ा बैठा है। देखो बूढ़ा से कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सबसे पहले बताता है जब मैं ऐसे था तब मैं ऐसे करता था, तुम ये करते हो। लेकिन वही बूढ़ा अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, भगवद गीता, भागवतम, हरि नाम संकीर्तन, चैंटिंग, कुछ भी, भगवान प्रसाद भगवान के लिए बनाना, मंदिर में सेवा करना, कुछ भी, अपना घर में झाड़ू देना भगवान के लिए, अगर ऐसा बूढ़ा व्यक्ति है तो उससे लोग कम बात करना चाहते हैं कि ज्यादा? मतलब भक्त लोग ज्यादा। क्यों? आपने देखा है वो उसमें लिखा रहता है, क्रूड एग्जांपल है, सॉरी अबाउट इट। एक होती है नॉर्मल विस्की, एक होती है गोल्ड रिजर्व। यू नो व्हाट द डिफरेंस इज? मतलब गोल्ड रिजर्व इज मैच्योर्ड एंड इज वेरी ओल्ड, वो बहुत महंगी बिकती है। तो अगर बूढ़ा भगवान की कोई बात कर रहा है तो लोग वैल्यू कर लेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो ग्रहपाल इवाहरण। तो भैया ये है, इंफॉर्मेशन दे दी, अब काम में लाना नहीं लाना आपके ऊपर है? तो वन विल बी ट्रीटेड लाइक डॉग। ये सारी चीजें खाली जन्म मृत्यु नहीं बता रहे हो, देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो। नॉट जस्ट ही सेड अरे भाई 9 months विल बी इनसाइड वेरी पेनफुल, कम्स आउट वेरी पेनफुल, गोस बैक। नो नो, उसके बीच की जर्नी तो सुनो तब तो मजा आएगा। ओके, हाँ, कोई भी टाइम हो, 100%। अभी इससे बढ़िया डायलॉग कहाँ मिलेंगे आपको, बताओ। 3:30:16, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तो अभी उसको कुत्ते जैसा हाल हो गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। वायोन उत्क्रमा तोत्तरः कफ समृद्ध नाड़िकः काश श्वास कृता अयासः कंठे घुरघुरायते। मतलब रियलाइजेशन है इसमें सारी। वायुम उत्क्रमा तोत्तरतः, वायु का मतलब क्या है जी? एयर। उत्क्रमत्ता, बाहर आ गया है। क्या चीज? उत्तरः, आंखें जो हैं, एयर प्रेशर से बूढ़े व्यक्ति की आंखें बाहर आ जाती हैं। मतलब मुझे नहीं पता था पहले, अब पता है। अब वो बता रहे आगे क्या होगा। पहले कुत्ते की तरह है, अब आंखें बाहर आ गई एयर प्रेशर से। कफ समृद्ध, कफ क्या है भैया? समृद्ध, समृद्धि हो रही है उसकी। क्या हो रहा है कफ की? यहाँ कंजेशन इज इंक्रीजिंग। वेयर? नाड़िका, जो विंड पाइप है उसका, उसमें कफ बढ़ता जा रहा है। काश श्वास कृत आयस, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अयास, और क्योंकि अंदर कफ भरा हुआ है और सांस ली नहीं जा रही, तो क्या हो रहा है जी? कंठे घुरघुरायते, कंठ में से कैसी आवाज आ रही है? गुर गुर। फिर बगल वाले कह रहे हैं नींद नहीं आ रही है। ये रियलिटी है। अब उस आदमी के ऊपर सोचो, उस पर क्या गुजर रही है। जिंदगी भर खिलाया पिलाया बड़ा किया, सब किया, आप बोल रहे हैं क्या है ये, कुत्ते की तरह रखो, हर वक्त गुर्र गुर्र करता रहता है, क्या है ये? और वो क्या बोलते हैं जब वो बोलने की कोशिश करता है? अरे शट अप, क्या कह रहे हो आप पापा, आप तो रहने ही दो, हम देख लेंगे। ये सच तो यही है, लिखा है इसमें। अब ओके, आगे चलते हैं। ये सेम चीज यू रिमेंबर, विदुर हैड गॉन टू सेव धृतराष्ट्र। जब वो रह रहा था, उसकी भी
उसकी भी कुत्ते ऐसी हालत थी। वो रह रहा था महल में भीम और सबके साथ जिन्होंने उसके बच्चों को मारा था। उस वक्त विदुर ने भी यही कहा था, प्लीज रिपीट, अंधा पूर्वय वधिरो बंद प्राज्ञश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागः कफ उद्वहन। उसने बोला अंध पूर्व है, पहले से अंधे तो तुम थे ही। धृतराष्ट्र को बोला विदुर जी ने, उसको जगाने के लिए अंदर से, बिफोर लिविंग। यस, अंध पूर्व वधिरो, अब तुमको सुनना भी नहीं बंद हो गया तुम्हारा, पहले खाली दिखता नहीं था, अब तो सुनाई भी नहीं देता है। मंद प्राज्ञश्च सांप्रतम, बुद्धि तुम्हारी वैसी खराब है पहले से। विशीर्ण दंतो, विशीर्ण मतलब हिलते हुए दांत हैं तुम्हारे। मंदाग्नि, बिल्कुल सही। सराग, अब तुम राग में क्या करते हो? कफम उद्वाहन, अब तुम राग में कफ को बाहर निकालते हो। किसने बोला भागवतम में रस नहीं है? पर है कि नहीं सच? लिखा है भाई ये भागवतम। ओके, अब क्या है? वो बूढ़ा हो गया और उसको पूछ नहीं रहा और हालत खराब है। अब क्या है जी? 3:30:17 आगे चलिए जी। शयानः परिशोचिद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। अरे भैया, अरे भैया, शयानः, शयन करना क्या होता है? सोना। शयानः वो लेटा हुआ है, ठीक है जी। परिशोचित भी, बैठ के सोच रहा, लेटा हुआ, अब क्या करें? वाच्यमानोपि, अब हालत खराब है, अब लोगों को दिख रहा है जाने वाला है ये। पहले उसको बोलते थे शट अप, अब बोल रहे वाच्यमानोपि, भाई कुछ बोलो पापा, कुछ बोलो। वाच्यमानोपि, हालांकि उसको बोल रहे बोलने की, न ब्रूते, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही है। क्यों? कालपाश वशम गतः, काल के पाश में के वश में है। तो अब वो पहले तो सुनना नहीं चाह रहे थे, अब उनको दिख रहा है मर जाएगा बूढ़ा, तो वो कह रहे कुछ तो बोलो, अब उसके बोलने की शक्ति नहीं है। तो खाली बर्थ और डेथ नहीं है, ये जर्नी भी है ना जी। आगे चलिए जी, अब आगे क्या है? 3:30:18 एवं कुटुंब भरणे व्याप्रत आत्म अजितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानम् उरुवेदन्य आस्थद अहिधीः। एवं कुटुंब भरणे, व्याप्रत, व्याप्रत मीन्स एनग्रॉस्ड, आत्म अजित इंद्रिया, पूरी लाइफ उसने, फैमिली मेंटेनेंस में कोई बुराई नहीं है अगर पहले 2 रूल लगा रहा है तो, बल्कि उससे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के लिए कार्य कर रहा है और डिवोशनल सर्विस में लगा हुआ है, दोनों सेम ही है। अगर ये कर रहा है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो ठीक है। लेकिन अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पूरी लाइफ अगर निकाल दी, मेरे को, मुझे, मैं, तो फिर ईद वाले दिन मैं का हाल होता है नहीं? तो एवं कुटुंब भरने, बिना थोड़ा भी कुछ और ठीक से ड्यूटी किए हुए बिना भगवान के लिए पूरी लाइफ ऐसे निकाल दी। अब क्या होता है? म्रियते रुदताम स्वानम, उसकी वहां फिर मृत्यु होती है। ये सोच करते करते करते, और सारे जितने रिलेटिव्स हैं वो रोने लग जाते हैं। उरुवेदन्य, अस्थधि, कॉन्शियसनेस लूज हो जाती है, और उरुवेदन्य, बहुत ज्यादा पेन होते हुए शरीर को वो छोड़ देता है। अब आप जब जाने के बाद में, जब कोई चला गया बूढ़ा आदमी, अब आप किसी, जनरली भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी से पूछिए क्या होगी, मतलब भाई वेरी सॉरी, तो उनका आंसर क्या होता है?
हमारे लिए पापा ये करते थे, हमारे लिए पापा वो करते थे, हमारे लिए, मतलब आपको कोई याद नहीं कर रहा है, वो ये याद कर रहे हैं फैसिलिटीज कौन कौन सी चली गई। ये अब उसकी मृत्यु होती। लेकिन यही अगर दो चीजें पहले दो कर रहा होता, तो आई हैव सीन इन मेनी केसेस दे विल टेक आउट राम नाम सत्य एंड देयर विल बी बैंड बाजा देयर। इंटरेस्टिंगली दिस हैज कम ऑन अ डे ऑफ बर्थडे। बर्थडे का श्लोका कौन सा है जी? आयुर्हरति वै पुंसाम, प्लीज रिपीट, आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन अस्त च यन्नसौ तस्य रते यतक्षिणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। आयु क्या है जी? आयु हरति, हरी जा रही है, वाई पुंसाम सब लोगों की, उदयन उदयन अन्न यन्न च यस्त असौ, सन के राइज और सेट होने से आयु हरी जा रही है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या? तस्य रते, इसका एक एक्सेप्शन है, उत्तम श्लोक वार्ता। अगर सारी चीज भगवान से कनेक्ट कर दी तो फिर मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि यहाँ पे भी शांति में रहेगा, वैकुंठ में रहेगा और छोड़ने के बाद भी जाएगा। तो ये तो इसलिए प्रभु डिवोटीज का डिपार्चर तो देखा है, उनका अलग ही कॉन्शियसनेस लेवल होता है। एक अपने भक्ति वृक्षा में एक आते थे प्रभु जी, डिस्कवरी गार्डन की बात है, अब चले गए, हरियाणा से थे। उनका ये रूटीन था कि हर 2-3 दिन में यूज टू गो टू बांके बिहारी, वहाँ पे जाके बस बैठना, थोड़ा हरि नाम लेना और आ जाना। तो ही वॉज टेलिंग, हिज सन वॉज देयर, ही वॉज टेलिंग माई फादर वेंट देयर, ही वॉज सिटिंग फॉर 30-40 minutes and he just passed away there. One devotee was telling his mother used to go to the temple every day, not in ISKCON, but every day just remembering Krishna and doing devotional service. Every day she used to go. One day she went to the temple, she bowed down, ढोक लगाई, खत्म। तो ऐसा, look at Ratan Tata. At 86, what did he suffer? Hardly anything, because भगवान के लिए कार्य कर रहा है। Okay जी, now one more shloka we'll take and then we'll do pushp abhishek and then we will have cake cutting. Okay, so 3:30:19, knowledge number 11. Please repeat. Yam dutau tada praptau भीमौ सर्भसेक्षणौ सदृष्ट्वा त्रस्त हृदय श्रक्रन्मूत्र विमुच्यति। तब भैया जब उसकी जान निकल जाती है और पूरा टाइम सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में निकाला है, तब कौन आता है? यमदूतौ, 2 messengers of Yamraj, they arrive. तदा प्राप्तौ, प्राप्तौ मतलब दे अराइव। भीमौ, ओ भीम काय होते हैं वो, एंड सर्भसेक्षण, फुल ऑफ रैथ, उनको देख के ही घबराहट हो जाती है, भैया कौन आ गया। सदृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देख के, त्रस्त, घबरा जाता है वो, हृदय, उसका दिल घबराने लगता है। और फिर क्या होता है जी? शक्रन, शक्रन मतलब है स्टूल, मूत्रम यूरिन, विमुंचति, घबराहट के मारे ही पासेस यूरिन एंड स्टूल। Purport. We will end with this purport. Please repeat. There are 2 kinds of transmigration of a living entity after passing away from the present body. One kind of transmigration is to go to the controller of sinful activities, who is known as Yamaraj. The other migration is to go to the higher planets up to Vaikuntha. अब किधर का वीजा लिया है वहीं जाएगा। यम वापस वाला रूल था प्रभु। हाँ, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट, सही बोला।
Here Lord Kapila describes how persons engaged in activities of sense gratification to maintain a family are treated by the messengers. How persons engaged in activities of sense gratification to maintain a family. Maintaining family as Krishna family is different from maintaining family for the sense gratification. This is the main difference. If it's for sense gratification तो इस वाले ट्रांसमाइग्रेशन ये वाला वीज़ा मिलेगा, और दूसरा है तो आपका पासपोर्ट चेंज हो जाएगा, फिर आप घर जाओ, है जी. At the time of death, the Yamadutas become the custodians of those persons who have strongly gratified their senses. They take charge of the dying man and take him to the planet where Yamaraj resides. The conditions there are described in the following verses. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय. आज के लिए इतना ही बहुत है, मेरे से झेला नहीं जाना. इसके आगे प्रभु दूसरा वाला भी है क्या? अभी बहुत कुछ है. वाला तो नहीं, अभी तो सिर्फ मरा है, आगे कहाँ जाएगा, फिर वहां क्या होगा, फिर वापस कैसे आएगा, अब पूरा पूछा है ना. अगर सही करेगा तो क्या होगा? हाँ, कैलामिटीज ऑफ बर्थ एंड डेथ. पार्ट 1 का Knowing इतना difficult है, people will not want to. तो इसीलिए वो बोला कि भाई मे बी बाई नोइंग वन मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल अटैचमेंट. अटैचमेंट इज नॉट बैड, अटैचमेंट इज वेरी गुड, इससे करना है वो. but not with the body. If it is attachment is as Krishna Ansh, then it is wonderful. Family is all Krishna's family. Husband Krishna's gift, I presume so, huh? Wife Krishna's gift, obviously. Children are Krishna's gift. फिर कितना मेंटेन करो, no problem. एक जगह आता है, otherwise children are like thieves. भागवतम के वर्ड्स है. If it is not this way, then they will steal your wealth. You like it or not? They'll wait for you to go. हो सकता है एक्सेलरेट ही कर दें. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी इकट्ठे भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कॉपी पेस्ट की जय. ओके, प्रभु उसको ऑफ कर दीजिएगा. लेट्स कॉल द चिल्ड्रन, वी विल हैव पुष्पाभिषेक एंड देन वी विल हैव, प्रभु इज गोइंग टू Prabhu does very nicely. Okay, fine.